So we were discussing some questions yesterday. We have studied some formulas and all those things. Look at this sine 75 degree. So it is not a standard angle, but we can write this as sine 45 degree plus 35. 30 degree. 30. Okay. So which is equal to, it is sine x plus y form. It is sine x cos y plus cos x sin y, राइट क्योंकि sin x प्लस वाई sin x प्लस वाई आपके पास फॉर्मूला है sin x cos y प्लस cos x sin y. सो फॉर्मूला अप्लाई करके sin x cos y plus cos x sin y. So now you have to give values. Sin 45 is 1 by root 2. Cos 30 is root 3 by 2 plus cos 45 is 1 by root 2. Sin 30 is 1 by 2. 1 by So this is equal to root 3 by 2 root 2 plus 1 by 2 root 2. So which is root 3 plus 1 divided by 2 root 2. Correct? Similarly, अभी tan का देखेंगे तो tan 15 degree. Tan 15, it is not a standard angle, but you can write like this. Tan 45 minus 30. 45 minus 30 degree. अभी आपके पास tan x minus y का फॉर्मूला है. Tan x minus y is equal to tan x minus tan y divided by 1 1 plus minus 1 tan plus x tan x tan y फॉर्मूला है. Tan 1. So ये फॉर्मूला इधर अप्लाई कर देना, which is tan x. So tan 45 degree minus tan 30 degree divided by 1 1 plus plus tan 45 degree into into tan tan 30 degree. 30 degree. Tan 45 is 1 minus tan 30 is 1 by root 3. 1 by root 3 divided by 1 plus 1 into 1 by root 3. So this is root 3 minus 1 divided by root 3, the whole divided by root 3 plus 1 divided by root 3. root 3. So दोनों का डिनोमिनेटर root 3 कट हो जाएगा, बाकी आएगा root 3 minus 1 divided by root 3 plus 1. Understood? So like this, we can apply sum and difference formula to find the angles, the values of the angles of non-standard angles. Like it is 75, 15, they are not standard angles. So we can make use of this. Okay. Now we are going to prove the problems. देखो ये आप देखेंगे तो हमें प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू sin x plus y. This is left hand side, right? Left hand side. So, हम क्या करते हैं, हम कोई भी एक साइड ले सकते हैं. Either you can take the left hand side and you can prove it is equal to the right hand side,
or you can take the right hand side, prove it is equal to the left hand side. So anyway, I am taking the left hand side. Left hand side is equal to, आप देखेंगे तो इसी देखो it is something like if you call this as ex, this as y, अब देख सकते हैं कि that is of the form cos x cos y minus sin x sin y फॉर्म में है, cos x उसी फॉर्म में, x के जगह सिर्फ इतना है कि x के जगह उन्होंने यूज किया पाई बाई 4 माइनस एक्स, y के जगह उन्होंने यूज किया पाई बाई 4 माइनस वाई, ऐसे इक्वल नहीं, उसी जगह ऐसे जगह यूज किया। तो इट इज ऑफ द cos x cos y, and what is cos x cos y minus sin x sin y? It is cos sin x plus y. नहीं बाबा, cos x plus y, isn't it? इसलिए मैंने बोला फॉर्मूला बाय हार्ट, एकदम बाय हार्ट कर देना। sin x प्लस वाई का उसमें से ये एक साइन आएगा, एक कॉस आएगा, ऐसे sin x cos y, एक साइन है तो दूसरा cos, देन cos x sin y, वन साइन दूसरा cos, sin x cos y प्लस cos x sin y, प्लस है तो इधर प्लस आएगा, माइनस है तो इधर माइनस आएगा, दैट्स अ डिफरेंस। ओके, देन Yes, sir. cos x प्लस वाई और cos x, उसमें से सिर्फ एक ही है cos x Cos x, cos y sin x sin x, sin y. sin y, प्लस है तो इधर माइनस आएगा, x माइनस वाई है तो इधर प्लस आएगा, दैट्स Plus I. डिफरेंस। ठीक है, सो वैसे याद रख देना। सो cos x cos y माइनस sin x sin y, इट इज cos x प्लस y। सो आप इसको लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू cos x प्लस वाई, x के जगह पाई बाई 4 माइनस एक्स दा, प्लस y के जगह पाई बाई 4 माइनस, तो cos x प्लस वाई का फॉर्म में लिख सकते हैं। सो दिस इज नथिंग बट cos पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, पाई बाई 4 Pi by प्लस पाई बाई 4 विच इज पाई बाई 2, right? whole minus x It plus is y. 2 pi by 4 which is equal to pi by 2. Then इधर एक minus x है, minus y है, so it is cos pi by 2, you can take a minus common, bracket x plus y, Plus y. and cos pi by 2 minus x, formula हमने पढ़ा है क्या, it is Sin sin x. x. So cos pi by 2 minus x plus y, that is sin x plus y. Sin x. And that is your Hence, right hand side, isn't it? It's proved. Yes, We sir. started with the left hand side and we proved that it is equal to the right hand side. Okay. Now we'll move to the next question. हम इतना फास्ट नहीं जा रहे, थोड़ा स्लो ही जा रहे, क्योंकि दिस इज इम्पोर्टेंट। जब जब फास्ट जाने का टाइम आएगा आई विल गो फास्ट, अभी तो थोड़ा स्लो चल रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इधर 7th क्वेश्चन। So we can start with the left hand side. Okay, left hand side, tan x plus y, हमारे पास जो फॉर्मूला है tan x plus y, tan x plus y, फॉर्मूला क्या है, which is equal to tan x plus tan y divided by 1 minus
tan x tan y. tan x माइनस y है तो ऊपर tan x माइनस tan y आएगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x tan y आएगा. So here tan, so it is tan pi by 4 plus tan x divided by 1 minus tan pi by 4 into tan x. मैंने ऊपर राइट न्यूमरेटर को लिखा है. Denominator tan a minus b form, so it is tan pi by 4 minus tan x divided by 1 plus tan pi by 4 into tan x. आया समझ में? सिर्फ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मैंने एक्सपेंड किया. ओके, नाउ व्हिच इज इक्वल्स tan pi by 4 कितना था? 1 1 plus tan x divided by 1 minus tan pi by 4 is 1 into tan x, so it is 1 minus tan x Tan. the whole divided by, then tan pi by 4 is 1 minus tan x divided by 1 plus tan pi by 4 is 1 into tan x, it is tan x. So it is 1 plus tan x divided by 1 minus tan x. Instead of division we can multiply with the reciprocal. So 1 plus tan x ऊपर जाएगा, 1 plus tan x divided by 1 minus tan x. So 1 plus tan x into 1 plus tan x, it is 1 plus tan x tan the square whole square. 1 minus tan x into 1 minus tan x, that is 1 minus tan x the whole square. whole इसको हम 1 minus 1 plus tan x by 1 minus tan x the whole square लिख सकते हैं, and that is your right hand side. Okay, we started with the left hand side. We proved that it is equal to the right hand side. एकदम सिंपल, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रख देना. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. कॉस, इसका एक साइड किधर गया? एक मिनट, let me check. Is equal to cot square x. Okay. Is equal to, it is equal to cot square x करके प्रूफ कर देना. So we'll start with the left hand side. Okay. Is equal to cos pi plus x. cos pi plus x. मैंने आपको कल फॉर्मूला बताया था, टेक्निक बताया था. पाई है तो इट विल नॉट चेंज, सो इट इज cos x ओनली. बट इतना है कि साइन चेक करना. पाई प्लस एक्स मतलब थर्ड क्वाड्रेंट इट इज नेगेटिव, सो नेगेटिव cos x. Then into cos minus x is same as cos x divided by sin pi minus x. पाई माइनस एक्स, पाई है तो कोई चेंज नहीं होगा, साइन एक्स ओनली. पाई माइनस मतलब सेकंड क्वार्टर साइन इज पॉजिटिव.
then cos pi by 2 plus pi by 2 आया तो cos will become sin, so it will be sin x. Pi by 2 plus मतलब second quadrant में cos is negative, so it is negative. So it is negative cos square x divided by negative sin square sin x. square x. Negative by negative पॉजिटिव हो जाएगा. Cos square x by sin square x is cotangent square x because cos by sin is cotangent. Okay. Yes sir. सर Oh. आप इनवर्स फंक्शन के वैल्यूज निकालने हाँ, इनवर्स कैसे फंक्शन का निकालते? जैसे उसके लिए कुछ और बताना पड़ेगा. आई विल जस्ट टेल यू. जो आपने आप पूछा, सो इट इज लाइक फॉर एग्जाम्पल tan inverse जैसे of 2 देखो tan पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1. ओके, तो हम ऐसे बोल सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू 5/4. सो इनवर्स मतलब ऐसे है कि जैसे उसके बारे में आपने अभी तक पढ़ाई नहीं किया. इनवर्स फंक्शन ये सब कुछ नेक्स्ट ईयर में आएगा. जैसे आपका एक सेट इधर है, एक सेट इधर है, सेट ये. ओके, सो इधर से एक Yes sir. फंक्शन जैसे सेट बी. सो फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा रिलेशन ऐसे है कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 3. एक एग्जाम्पल बता रहे. तो इधर 1 है तो किधर जाएगा? 5 में जाएगा. Yes sir. 2 है तो 7 7 में जाएगा. 3 है तो 9 9 में जाएगा. So this is suppose this is a function f of x is equal to 2x plus 3. Okay, तो so इधर क्या कर रहे थे? इधर का x को उधर y में मैप कर रहे हैं. देन ये y को वापस x में, so ये f of x. अभी ये y को वापस x में मैप कर रहे, उसको बोलते हैं f इनवर्स x. इनवर्स ऑफ ए फंक्शन बोलते हैं, बट आप नेक्स्ट ईयर वो पढ़ाई करेगा. तो इधर मैं आपको बताता हूँ. जैसे ये वाला होगा, जैसे f इनवर्स x. आई नो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग. x माइनस 3/2. तो आप इधर से 5 ले लो, 5. ओके, सो इधर से जा रहे. f ऑफ x मैंने बोला था, वो फंक्शन था कितना? 2x प्लस 3. मैंने अब इधर से इधर आ रहे, वापस माप कर रहे. मैंने बोला वो f इनवर्स x है, उसको मैंने बोला क्या है? x माइनस 3/2. ठीक है, सो 5 दे दो. 5 माइनस 3/2 कितना आएगा? 2/2 2/2 1 आएगा. दैट मीन्स 5 वापस किधर आएगा? 1 में. 7 दे दो. 7 माइनस 3/2 2. सो 7 किधर आएगा वापस? 2 में. 9 दे दो. 9 माइनस 3/2 6/2 which is 3 में आ रहे. So this is the concept of one function and its inverse. Okay, one function and its inverse. Okay. Yes sir. One second.
So you got the concept of that inverse, that idea मिल गया ना? Yes sir. Okay. But इसमें से कुछ प्रॉब्लम है. इनवर्स भी जैसे हमेशा इनवर्स फंक्शन होना करके नहीं, इट इज द इनवर्स इज नॉट ऑलवेज फंक्शन. फॉर एग्जांपल जैसे सपोज एक्स स्क्वायर एफ वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट? Yes sir. सो जैसे फॉर एग्जांपल बता रहे हैं आप, जैसे आपने पूछे इसलिए डाउट क्लियर कर रहे हैं. जैसे इज इधर सपोज नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, ओके, नहीं तो integer to integer function. So your integers, okay. So क्या होते हैं, इधर तो आएगा देखो जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2 एक्सेट्रा. तो -3 किधर जाएगा? 9 में. 3 ऑल्सो किधर जाएगा? 9 में. 9. ओके. -2 जाएगा 4 में. 2 also will goes to 4. -1 और 1 जाएगा 1 में. 1 में. ठीक है. तब रिवर्स, सो दिस इज द फंक्शन f of x. जब रिवर्स देखेंगे तो रिवर्स देखो, रिवर्स इनवर्स का देखो, इनवर्स रिलेशन. इनवर्स रिलेशन में ऐसे आएगा 9 -3, 9 3, 4 -2, 4 2, 1 -1, 1 1, 0 0 एक्सेट्रा, है ना? बट Yes, इट्स sir. नॉट ए फंक्शन, क्योंकि 9 के लिए कितना देखो, 9 के लिए 2 आउटपुट आया ना, 3 भी आ गया, -3 आ गया. So what we can say, inverse of a relation is not always a function. ठीक है? But we can make it as a function. We can make it as a function by restricting the domain. For example, इधर मैं आपको बोल रहे जैसे f inverse x is equal to root x. Okay, x is greater than 0. तो 9 किधर आएगा? ओनली 3 में. 3. तो मैंने रेस्ट्रिक्शन रख दिया, ओनली पॉजिटिव रियल नंबर्स. सो 4 किधर आएगा? 2 में. 2. ऐसे रेस्ट्रिक्शन रख सकते हैं. अंडरस्टूड? Okay sir. Yeah. So the same will happen with the trigonometry function. जैसे आपको पता है sin 30 डिग्री कितना है? 1/2. 1 sin 150 डिग्री is also 1/2. 1/2. ठीक है. उसके बाद सो 2 बार पॉजिटिव आते हैं. दिस इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज इन सेकंड क्वाड्रेंट. अभी एक बार रोटेशन होने के बाद sin 390 डिग्री कितना आएगा? हाफ. इधर भी sin 360, 460, 510 डिग्री कितना आएगा? 1/2. हाफ ही आएगा. सो क्या होते हैं इधर आपका एंगल, ओके, एक सेट, इधर एंगल आपका b, योर फंक्शन इज sin x. सो इधर 30 डिग्री एग्जाम्पल बता रहे, 150 डिग्री, 390 डिग्री, 510 डिग्री, ये सब किधर जाएगा? ये सब जा रहे 1/2. 1/2 में जा रहे. जब आप साइन इनवर्स 1/2 करेगा, इट कैन बी 30 डिग्री और 150 डिग्री और 390 डिग्री और 510 डिग्री और एक्सेट्रा, बहुत सारा आएगा ना, इनफिनिट नंबर ऑफ वैल्यूज आएगा. Yes sir. है ना? 2 and 5 plus 30 degree.
what are infinite number of values, there will be infinite number of values. So sine inverse is not a sine inverse x is not a function. function, but we will make Make it it as a function function by restricting by domain. restricting domain. So उसको बोलते हैं, जनरल आइडिया आपको बोल रहे हैं, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच. साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है फॉर साइन इनवर्स एक्स, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है -π/2 to π/2. दैट मीन्स -90 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक. Yes, ma'am. तो ऐसे रेस्ट्रिक्ट करेंगे. सो साइन इनवर्स 1/2 मतलब आपको एंगल निकालना -90 डिग्री या 90 डिग्री के बीच में, उस एंगल का साइन कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा. एंड देयर इज ओनली वन एंगल, दैट इज 30 डिग्री. अंडरस्टूड. नाउ इट इज अ फंक्शन बिकॉज वी रेस्ट्रिक्टेड. सो ये इसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलते हैं. ओके. Yes, sir. वैसे हर एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए है. I will show you that principal value branch. Anyway, you asked, so I will show you your principal value branch. Just hold on. Yeah. ये देखो, जब इनवर्स आएगा ना, जब इनवर्स आएगा उसका डोमेन एंड रेंज, ये नॉर्मली देखो जब इनवर्स आएगा उसका डोमेन एंड रेंज एकदम रिवर्स हो जाएगा. जो फंक्शन का ये सही में क्या था, दिस वाज, दिख रहे ना, Yes, sir. दिस वाज रेंज ऑफ Inverse. ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन था. रेंज, दिस वाज रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन था. वो क्या हो गया, अभी डोमेन ऑफ इनवर्स हो गया. तो ये वैल्यूज